السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، اقتداء کے مسائل میں سے جو بہت سارے مسائل ہیں، ایک مسئلہ اس وقت بھی ہمارے سامنے ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام اگر امامت کرنے کے لیے آ جائے اور اسے اس وقت یاد آئے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، یا مثال کے طور پر ہوا خارج ہو گئی ہے، یا اس وقت وضو ٹوٹ جائے فوری طور پر، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ امام امامت کے لیے مصلی پر حاضر ہو جائے، اس وقت اسے یاد آئے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا اور وضو باوضو نہیں ہے، یا اس وقت ہی پہنچنے پر مصلی کے پاس پہنچنے کے بعد اس کا وضو یکایک ٹوٹ جائے کسی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں اسے جانشین بنا دینا چاہیے یا جانشین نہیں بنانا چاہیے؟ جانشین بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس صورت میں کیا کرے؟ کیا وہ مقتدیوں سے اجازت لے کر کے فوری طور پر مصلی سے ہٹ کر کے جائے، وضو کرے اور وضو کر کے فوراً آ کر کے نماز پڑھائے، یا پھر مثال کے طور پر وہ ایسا نہ کرے، وہ خود تو وضو کے لیے چلا جائے اور کسی کو اپنا جانشین بنا دے، آگے بڑھا دے کہ آپ میری جگہ پر امامت کر کے ان سارے مقتدیوں کو نماز پڑھا دیں؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو روایتیں ہیں ہمارے سامنے، اسے ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لائے، اور آپ نے نماز شروع کرنے سے پہلے ہی آپ نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ روایتیں کئی ہیں اور ان روایتوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ بعض روایتوں میں فکبر کے الفاظ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ دیا۔ بہرحال اس سلسلے میں اہل علم نے گفتگو کی ہے کہ آپ نے تکبیر اللہ اکبر کہہ دیا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہنے کا ارادہ کیا، یعنی آپ نے سوچا کہ تکبیر تحریمہ کہیں، اتنے میں آپ کو یاد آ گئی اپنی بات، اپنی حالت کے بارے میں آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کا وضو نہیں ہے، آپ بے وضو ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روم میں، اپنے گھر میں، اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور آپ نے غسل کیا، اور آپ جب کمرے سے باہر نکلے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور جب نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے، یعنی نماز پڑھا کر کے آپ فارغ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر وانی کنت جنوبا، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں اور میں جنبی تھا، یعنی آپ کو غسل کی حاجت تھی، آپ کو یاد نہیں رہا، آپ بھول گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ وجہ تھی، اس کی وجہ سے میں نے نماز شروع نہیں کی، بلکہ تم سے کہا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو۔ یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اور اسی طرح سے ابو داؤد کے اندر جو سنن ابو داؤد کی جو روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی مسند احمد بن حنبل کی ہے۔ ابو داؤد کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے اللہ اکبر کہا، جیسا کہ وضاحت ہو چکی ہے، اللہ اکبر کہا یعنی اللہ اکبر کہنے کا ارادہ کیا، آپ تکبیر کہنے ہی جا رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، واپس آئے، آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ نے انہیں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم وانی کنت جنوبا، لوگوں میں تمہاری ہی طرح انسان ہوں، تمہارے ہی مثل انسان ہوں، بشریت میں تمہارے ہی جیسا ہوں، البتہ نبوت کا ایک مجھے مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور مجھے شرف اور فضائل بہت سارے عطا کیے گئے ہیں، لیکن بحیثیت انسان میں تمہاری ہی جیسا انسان ہوں، جو انسانی بشری تقاضے ہیں وہ میرے پاس بھی، میرے ساتھ بھی جیسے تمہارے ساتھ ہیں، میں جنبی تھا، مجھے یاد نہیں رہا۔ بہرحال یہ روایت ابو داؤد کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر پہنچنے کے بعد یہ بات یاد آئی کہ آپ کو غسل کی ضرورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام کو، مقتدیوں کو روکا کہ کھڑے رہو، اور آپ فوری تشریف لے گئے کمرے میں، واپس آئے، اور آپ نے اس کے بعد نماز پڑھائی۔ ظاہر ہے کہ آپ کا گھر بالکل مسجد نبوی سے متصل تھا، آپ فوری داخل ہوئے اور آپ غسل کر کے باہر تشریف لائے، اس میں کچھ وقت نہیں گیا، چند منٹوں کے سوا بہت ہی مختصر طور پر آپ فوری تشریف لائے۔ یہ کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان حدیثوں کے اندر استخلاف کا ذکر نہیں ہے، جانشین بنانے کا ذکر نہیں ہے کہ آپ نے جانشین بنا دیا ہو، کسی کو کہہ دیا ہو کہ چلو میری جگہ نماز پڑھا دو۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی،
वउद्दिलत सुफूफ, और सफ़ें सीधी की गईं, सब लोग खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ तशरीफ़ लाए और आप जैसे ही अपनी मुसल्ले पर खड़े हुए, आपको याद आया कि आप जुनूबी हैं। ज़करा अन्नहु जुनुब, आपको याद आया कि आप जुनूबी हैं, तो आपने हमें फरमाया मकानकुम, अपनी जगह खड़े रहो। फिर आप गए और वापस आए, आप गए वापस लौट गए और आपने गुस्ल किया और आप वापस तशरीफ़ लाए। आपके सर से पानी टपक रहा था, आपने अल्लाहु अकबर कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ाई, हमने आपके साथ नमाज़ पढ़ी। ऐसी ही एक रिवायत में ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तशरीफ़ लाए, इक़ामत कही गई, सफ़ें सीधी की गई, यहाँ तक कि जब आप अपने मुसल्ले पर खड़े हुए तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि आप अल्लाहु अकबर कहें और नमाज़ शुरू करें। हम इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आपने अल्लाहु अकबर नहीं कहा, यानी तकबीर तहरीमा आपने नहीं कही, आप वापस चले गए और उसके बाद आपने फरमाया, जाते हुए आपने फरमाया अपनी जगह पर रहो। बहरहाल मेरे भाइयों, इन रिवायतों से पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को ये कहा कि अपनी जगह खड़े रहो, और आप तशरीफ़ लाए वापस नहाने के बाद, गुस्ल करने के बाद, और आपने सहाबे किराम को नमाज़ पढ़ाई। अब यहाँ पर एक बात जो थी वो ये थी कि ऐसी सूरत में क्या यही करना चाहिए कि या क्या यही करना चाहिए कि इमाम जो है वो फौरी तौर पर चला जाए, गुस्ल कर ले और गुस्ल करके आकर के नमाज को पढ़ा दे, या फिर उसे जानशीन बना देना चाहिए। जानशीनी के सिलसिले में आप देखिए कि यहाँ जो मसला है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ये है कि आपका घर, आपका हुजरा जो है वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मुत्तसिल था, इसलिए आप फौरी दाखिल हुए और आप वहाँ से वापस तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को नमाज़ पढ़ाई, इसलिए यहाँ ये मसला तो आसान था। लेकिन दूसरा जो मसला है वो ये है मेरे भाइयों कि क्या जो आदमी वज़ू करके गुस्ल करके फ़ौरी ना आ सकता हो, उसके गुस्ल करके आने में, जा करके वापस आने में वक्त लग सकता हो। ज़ाहिर है कि हर आदमी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि फ़ौरी तौर पर, जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हुजरा मस्जिद नबवी से मुत्तसिल था, ऐसे ही मसला हो। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, अगर ऐसा हो तो ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो ऐसी सूरत में जानशीन बनाने का भी तरीक़ा मौजूद है। जानशीन बनाने का तरीक़ा, वो तरीक़ा हमें कहाँ से मिलता है? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के मौके पर जो आपके साथ वाक़या पेश आया था, मैं आपके सामने वो रिवायत नकल कर देना चाहता हूँ। उससे पता चलता है कि आप जानशीन भी बना सकते हैं, अगर आपके लिए मुमकिन ना हो, इमाम के लिए मुमकिन ना हो कि वो जल्दी से वापस चला आए नहा करके, गुस्ल करके, बल्कि देर लगने का अंदेशा हो, 10 मिनट 15 मिनट। जाहिर सी बात है कि इतना वक्त तक तो नहीं मुक़्तदियों को इंतज़ार कराया जा सकता है, और ये चीज़ मुमकिन नहीं है, इसमें मुक़्तदियों के लिए मशक्क़त है, ज़हमत है, जो मुनासिब नहीं है। तो ये जानशीनी का तरीक़ा है। आप देखिए इस सिलसिले में जो रिवायतें हैं, हज़रत अम्र इब्न मैमून बयान करते हैं, कहते हैं कि मैं नमाज में खड़ा था, मेरे और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बीच में। कहते हैं ये उस दिन की बात है जिस दिन उन्हें खंजर घोंपा गया, उन पर हमला किया गया, उस दिन की बात है। फजर की नमाज में मेरे और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बीच में सिर्फ़ और सिर्फ अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। कहते हैं जैसे उमर बिन ख़त्ताब ने अल्लाहु अकबर कहा, मैंने फ़ौरन ही ये आवाज़ सुनी कि उमर बिन ख़त्ताब ने कहा क़तलनी औ अकलनिल कल्ब। जैसे ही उस जालिम ने खंजर घोंपा, उनके पेट में मेरे भाइयों वार किया, वैसे ही फौरी तौर पर उन्होंने कहा अकलनिल कल्ब या क़तलनिल कल्ब, कुत्ते ने मुझे खा लिया या कुत्ते ने मुझे मार डाला। उनकी ये आवाज़ मैंने सुनी, और उसके बाद फौरी तौर पर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को फौरी तौर पर हाथ से पकड़ करके इशारा किया और उनको अपने आगे मुसल्ले पर बढ़ाया और इशारा किया कि नमाज़ पढ़ा दें। बहरहाल उनके हुक्म पर, उनके बढ़ाने पर अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई और मुख्तसर नमाज़ पढ़ाई। आप देखिए यहाँ पर जानशीनी का जिक्र है, ठीक है, यहाँ पाकी का मसला नहीं है, नापाकी का मसला नहीं है, लेकिन जाहिर है कि सूरत हाल ये है कि फ़ौरी तौर पर कोई और रास्ता इसका नहीं निकल सकता था, कोई और बदील इसका नहीं था, इसलिए मेरे भाइयों ये तरीक़ा अख्तियार किया गया और उन्हें बढ़ा दिया और उन्होंने नियाबत में उनकी मुक़्तदियों को नमाज़ पढ़ाई, मुख्तसर नमाज़ पढ़ाई। इसी तरह से अबू रज़ीन से भी मरवी है, वो बयान करते हैं कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक दिन नक्सीर फूट गया। आप जानते हैं नक्सीर क्या होती है? अचानक कभी किसी वजह से नाक से खून जारी हो जाता है, तो इसे नक्सीर कहते हैं, रुआफ जिसको कहा जाता है अरबी ज़बान में। नक्सीर फूट गई। अब जाहिर बात है कि ये एक तकलीफ़ का मसला था। ऐसी सूरत में उन्होंने क्या किया, फ़ौरी तौर पर एक आदमी का हाथ पकड़ा और उसे आगे बढ़ाया और ख़ुद
मस्जिद से बाहर निकल कर, सफ़ों के बाहर से बाहर निकल कर के चले गए और उनकी जगह पर उस शख्स ने नमाज़ पढ़ाई जिसे उन्होंने मुक़द्दम किया था। बहरहाल मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, इन दोनों तरह की रिवायतों को सामने रख करके अहले इल्म का जो फ़ैसला है वो ये है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि अगर इमाम इस तरह की कोई सूरत पैदा हो जाए तो ऐसी सूरत में वो जानशीन भी बना सकता है, जैसा कि हज़रत उमर ने, हज़रत अली ने जानशीन बनाया। और अगर ये चीज़ इसकी ज़रूरत ना हो बल्कि वो फौरी तौर पर गुस्ल करके आ सकता हो तो ऐसी सूरत में गुस्ल करके वो आ जाए। लेकिन अगर फौरी तौर पर ये काम ना हो सकता हो तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जानशीन बनाने का, जैसा कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जानशीन बनाया। दूसरा रास्ता ये है कि ऐसी सूरत में वो अगर चाहें तो इमाम चला गया है, इमाम चला जाए अपनी ज़रूरत की बुनियाद पर और किसी को जानशीन भी ना बनाए, बल्कि मुक्तदी खुद अपनी अलग अलग नमाज, मेरे भाइयों, इनफरादी तौर पर सब लोग अपनी अपनी नमाज़ें पढ़ लें। इसकी भी असल मौजूद है और वो असल ये है कि हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब नेज़ा मारा गया था तो उस वक्त जो सूरत हाल पेश आई थी वो ये थी कि किसी को नायब नहीं बनाया था, उन्होंने जानशीन नहीं बनाया था, बल्कि सभी लोगों ने अलग अलग अपनी नमाज़ें मुकम्मल की थीं। तो बहरहाल मसले का खुलासा ये है कि अगर फ़ौरी तौर पर मुमकिन हो पाकी हासिल करके गुस्ल करके आ जाए तो ठीक है, आ जाए। लेकिन अगर देर होने का अंदेशा है तो ऐसी सूरत में हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता जानशीन बनाने का है कि जानशीन बना दिया जाए ताकि इमाम की नियाबत में वो नमाज़ पढ़ा दे, और दूसरा रास्ता ये है कि जानशीन न बनाया जाए बल्कि मुक्तदी खुद अपनी अपनी अलग अलग नमाज बग़ैर जमात के इनफरादी तौर पर पढ़ लें। इसकी भी गुंजाइश है, जैसा कि हज़रत मुआविया के वाक़े से पता चलता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे भाइयों, इसीलिए वो हदीस भी हमें यहाँ पर जिक्र करनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था, लियलियन्नी मिनकुम उलुल अहलामी वन्नुहा, जो लोग तुम में से अक्लमंद हैं, सूझबूझ वाले हैं, समझदार हैं, इल्म वाले हैं, वो मुझसे करीब रहें, मुझसे करीब रहें। इसका मकसद क्या था? मकसद ये था मेरे भाइयों कि अगर कोई मसला इमाम के साथ पेश आए तो समझदार लोग करीब में रहें और इमाम की नियाबत कर सकते हो, इमाम की जानशीनी कर सकते हो और नमाज़ पढ़ा सकते हो। बहरहाल ये इस मसले का इख्तिसार के साथ खुलासा है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरह के हालात में इन आसार पर, इन हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।